direct addressing that we have. Screen is visible to all. Screen is visible to all. Yes, sir. Okay. So let us try to explain and let us try to understand what exactly the direct addressing mode first, and then we will go for the displacement. This is we can say a repeat telecast of the previous lecture, because some peoples are not yet to be understand what exactly the displacement and what exactly the direct addressing mode is there, right? So now see, this is your memory, right? This is your memory. Say these memory locations are, we can say, uh, C000, C001. Consider only these two memory locations that we have. Now, what exactly the things are there? Our instruction. Which instruction we are going to use to explain the direct addressing mode? We are commonly use move instruction to uh, understand about the addressing modes that we have, because it is very simple instruction, and it will give you a clear idea about what exactly the addressing and how the data comes from the different sources and where it is to be going to store. Okay, so the instruction is move al comma 2000h. Move al comma 2000h, or we can consider this 2000 as a C000h. Okay, so now what exactly here we are having this memory location C000 and C001. Okay, so I'm putting here a data that is 3412. 3412. So now after the execution of this instruction, after the execution of this instruction, the content of AL will be replaced with the content of memory location C000. Okay, this is the basic purpose of that particular instruction. But how it comes to uh, operation, or how the operation is going to be carried out over that, let us we will going to see. Now you know that this is your 1 MB memory, and that 1 MB memory have a different memory locations in it, right? Consider this is a data, and that data is present into a specific, we can say, a data segment, right? So from anywhere you can start your data segment, and from anywhere you can start another statement, another segment that the particular program will require, because you are the programmer of that particular program, so you can have a rights to map your particular segments that you want to use into 1 MB memory space. Okay, so this is your 1 MB memory, and now 1 MB memory have a different memory locations. That memory locations we are considering C000h and C001h. Okay, so here we are talking about this particular instruction. This is the move instruction. In that case, this is your source and this is your destination. Now find out which kind of source is there and which kind of destination is there. Who is going to tell me in this instruction which is the source and which is the destination? C000H source and AL is destination. So what type of source and what type of destination is there? Sir, source memory or Yes, destination register. register. So source, we can say it is a memory, and destination, it is itself a register of 8 bit.
कितने बीट का रजिस्टर है? वो 8 बीट का रजिस्टर है, बराबर। ओके, सो अब देखो डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है। डायरेक्टली हम मेमोरी लोकेशन से डील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन से डील कर रहे हैं। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, या माइक्रो प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते समय क्या करेगा कि C00H, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे C00H, ये C00H के कंटेंट उठाएगा और ये उठाने के बाद AL रजिस्टर में इसको पुट करेगा। हम बोलेंगे कि दिस इज योर स्पेस that is covered by your AL register, or that is having in AL register. So whatever the content that is present on C00H, directly microprocessor deal with that particular location and finding out where the data is, and the data is going to move into the content of register. This is called as a direct addressing mode. What is it? डायरेक्ट Direct एड्रेसिंग मोड। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में किसी को डिफिकल्टी है? डायरेक्ट एड्रेसिंग में किसी को डिफिकल्टी है? नहीं है। अब सवाल आता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बराबर है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कि ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट को हम थोड़ा सा अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको पता चला कि डायरेक्ट में क्या होता है कि एक मेमोरी लोकेशन होती है, एक मेमोरी लोकेशन होती है, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी एड्रेस होगा, जो भी डेटा होगा, वो डेटा डेस्टिनेशन में चला जाएगा। यहाँ पे आपको कहीं किसी चीज को, या हम बोलेंगे कि हम डायरेक्टली उस मेमोरी लोकेशन से डील कर रहे हैं, या वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन से डेटा उठा रहा है। और डायरेक्टली जब डेटा उठाएगा तो वो डेटा किस जगह पे स्टोर होने वाला है? डेटा अगर 8 बिट हो तो 8 बिट रजिस्टर में स्टोर होने वाला है, डेटा अगर 16 बिट हो तो वो 16 बिट में स्टोर होने वाला है। ओके, और 16 बिट का डेटा, ये दोनों मिला के 16 बिट का डेटा होता है। एक मेमोरी लोकेशन 8 बिट की होती है, 1 बाइट वी कैन कंसीडर। सो ये 2 बाइट मिला के 16 बिट डेटा होता है। तो ये अगर आपको इंस्ट्रक्शन ऐसी आए, मूव AX, 1234H, राइट, तो ये हो गया इमीडिएट वाला। इमीडिएट तो हमने पढ़ा है पिछली बार। whatever the data is immediately transfers into a content of AX, but in that case, in place of immediate number, we are placing C00H, that is memory location. Now whatever the data is present onto that particular memory location is going to transfer over the particular register that we have, either 8 bit or 16 bit. Understood? Understood? अब इसके बारे में किसी को दिक्कत है? इसके बारे में किसी को Yes, sir. डाउट है? Yes, sir. इसके बारे में डाउट है किसी को? डायरेक्ट के बारे में डाउट है? नो सर। नो सर। नो No, sir. ओके, तो अब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की हम थोड़ा सा उसका हिंट लेंगे कि क्या होता है एक्चुअल, राइट। मान लो कि ये पर्सन ए है, ओके, और ये पर्सन बी है। अब ए और बी पर्सन सी वाले पर्सन को जानते हैं, बराबर है। अब बी वाला क्या करेगा, या बी पर्सन क्या करेगा, ए के पास जाएगा। ए के पास जाने के बाद बोलेगा कि मुझे सी के घर जाना है, ओके। तो सी के घर जाने से पहले वो ए को पता पूछ रहा है। क्या बोल रहा है वो? कि मुझे सी के घर जाना है, मुझे एड्रेस बोल दो। तो अब ये एड्रेस ए ऐसे बोलेगा कि मान लो ये पर्टिकुलर शॉप है, ओके, एक शॉप यहाँ पे आता है। तो बोलेगा गो टू द स्ट्रेट, देन फर्स्ट राइट, ओके, यहाँ पे एक शॉप लगेगा, शॉप से थोड़ा आगे जाके फिर लेफ्ट ले लो,
और 4 नंबर का घर जो है वो सी का है। ओके, तो बी क्या करेगा, उसकी जर्नी कहाँ से शुरुआत करेगा, यहाँ से, तो यहाँ से बी ऐसा आएगा और यहाँ तक आके पहुंचेगा। ओके, यहाँ तक आके पहुंचा बी। अब बी इस शॉप को ऑब्जर्व करेगा और इस शॉप से आगे होते हुए ऐसे सी तक पहुंचेगा, आगे सी तक पहुंचेगा। तो बी को सी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कैरी करना, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, पहले यहाँ तक का, पहले यहाँ तक का और उसके बाद यहाँ तक का। तो हम इसको, अगर इसको दोनों को मिलाते हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगा आपको ए से सी का, ए से सी का, बराबर है। उसी तरीके से इस डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट में आपको दिया जाता है डेटा सेगमेंट या सेगमेंट एड्रेस। अब ये सेगमेंट एड्रेस क्या होता है, सेगमेंट एड्रेस क्या होता है, डेटा जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की मेमोरी लोकेशंस होती है, राइट। तो डेटा ऑब्वियसली स्टोर होगा डेटा सेगमेंट में, तो डेटा सेगमेंट का वैल्यू वहां पे दिया जाएगा, डेटा सेगमेंट का वैल्यू वहां पे दिया जाएगा। जैसे कि मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो मूव ax ds, राइट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड ds स्टैंड्स फॉर डेटा सेगमेंट 2000h। ये इंस्ट्रक्शन है और ds की वैल्यू आपको दी जाएगी 0100 या और कुछ दी जाएगी। ओके, तो अब देखो हमें दोनों पता है, और अब हम करने वाले क्या है कि फाइंड आउट करेंगे कि इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम डेटा तक कैसे पहुंचते हैं। तो मान लो कि आपका ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है, okay, this is the start of your data segment, we are considering this, okay, this is the start of your data segment. So start of data segment is denoted by 0100, okay, understood. And after that where your data is actually on 2000h, बराबर है। तो अब देखो डेटा एक्चुअली कहाँ पे है, ये कैसे फाइंड आउट करता है आपका मेमोरी, आपका पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर। तो ये डिस्प्लेसमेंट या ये एड्रेस और ये एड्रेस उसको एक दूसरे के साथ मिलाना पड़ता है, बट मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको डीएस को, वैल्यू ऑफ डीएस को 0100 को वो हमेशा 10h से मल्टीप्लाई करता है। तो वैल्यू ऑफ डीएस को 10h से मल्टीप्लाई किया तो आता है 1000h, तो 1000h। तो अब देखो 1000h मतलब मुझे इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन तक मैं आ गया हूं अभी। अब यहाँ से आगे जाना है, तो यहाँ पे 2000 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा आपको 3000h। तो जो डेटा आपका प्रेजेंट होगा वो एक्चुअली मेमोरी में 3000h पे स्टोर होगा, बट आपको वो लॉजिकली 2000 के ऊपर स्टोर है ऐसे बोला जाएगा, क्योंकि 2000h जो भी एड्रेस है वो विद इन डेटा सेगमेंट का है। तो डेटा सेगमेंट तक पहुंचने के बाद आगे कहां तक जाना है, 2000 मेमोरी लोकेशन तक जाना है। जैसे यहाँ पे इस शॉप तक आने के बाद आगे कहां तक जाना है, इस लोकेशन तक जाना है। तो ये पर्टिकुलर शॉप का पोजीशन हो गया आपका डेटा सेगमेंट का, राइट। Once you are finded out the start of your data segment, then you can easily map to the particular location where the data is. So यहाँ पे इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग परफॉर्म होती है। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। पूजा,
जयश्री, श्रद्धा, श्रेया, ऋतिक, भरत, नवनाथ, राधा, आकांक्षा, अभिषेक. Talk to me as early as possible because we have a lot of syllabus to complete. नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। नहीं सर अभी नहीं. नो सर, कोई डाउट नहीं। अब डाउट नहीं है, मैं आगे चलूं? यस सर. यस यस सर। यस सर। ओके, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग का लिख लिया है आपने? नहीं सर। नो सर। हाँ, नहीं तो सर लिखो अभी. डायरेक्ट एड्रेसिंग. डायरेक्ट एड्रेसिंग लिखो. Indirect addressing. Indirect addressing indirect addressing mode. Indirect addressing mode the source field consists of the source field consists of memory location, सर कंसिस्ट ऑफ के आगे क्या है? memory location, indirect addressing mode, source field consists of memory location or address, and at the destination level, and at the destination level, एंड के आगे क्या बताया? फिर से बताइए White. सर, आपका आवाज and level, सर वॉइस And- ब्रेक हो रही है सर आपकी। at the destination. Okay, wait for 1 minute. I will try to solve that particular problem. Okay. ओके सर। यस यस सर. Now I am audible. Yes, sir. यस 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 सर। हाँ, in direct addressing mode, at the destination, क्या लिखा था? At the destination, वो आती की आवाज at the source field, at the source field, क्या लिखा था? बोलो, सेंटेंस बोलो मुझे. The source field consists of memory location or the address and destination. Source field consists of memory location or address, comma, and at the destination place, and at the destination place,
there is the use of 8-bit or 16-bit register, 8-bit or 16-bit register according to the data that is present in source field. Full stop. This is shown in following example. This is shown in following example. अब आपको एग्जाम्पल लिखना है. आप एग्जाम्पल कौन सा लिखोगे? मैं बोलूंगा वो एग्जाम्पल लिखोगे. Screen is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके. अब देखो आपको ये एग्जाम्पल लिखना है. मूव AL, 2000H, मूव AL, 2000H, और सेकंड मूव AX, 3000H. ये दोनों एग्जाम्पल लिख के रखना है. अब पहला एग्जाम्पल लिखने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. लिखो. In this example, we used move instruction. We used move instruction full stop. Move instruction consists of source and destination. Move instruction consists of source and destination, comma, here source is an effective address of data stored in the memory and at destination there is a 8-bit general purpose register. There is a 8-bit general purpose register. After the execution of this instruction, data moved into the content of AL
moved into the content of AL, moved into the content of AL as shown in following figure. अब ये फिगर निकालो और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 3 4 लिखा है ना, तो ये 3 4 मत लिखो, सिर्फ यहाँ पे 1 2 लिखो और ये जो पार्ट आ रहा है ये AX के जगह AL लिख दो। फिगर है आपके सामने सभी के, दिखाई दे रही है फिगर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ऐसे ये बाकी का मत लिखो कुछ नीचे का, सिर्फ इतना लिखो। ये फिगर निकालो, आपके सामने जो है वो फिगर निकालो और उसके ऊपर हेडिंग भी डालना है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और नीचे इंस्ट्रक्शन लिखना है मूव AL, 2000H, मूव AL, 2000H, और यहाँ पे ये मेमोरी है राइट, इसको ऐसे लोकेशन दे देना है 2000H। तो वो पर्टिकुलर डायग्राम देखते ही आपको पता चलेगा कि 2000H से डेटा AL में ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि सोर्स के लेवल पे या सोर्स की जगह पे हमें एक इफेक्टिव एड्रेस दिया है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर है। वो एड्रेस मेमोरी लोकेशन होती है या मेमोरी में प्लेस होता है जहाँ पे आपका डेटा है, और ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, उस जगह से डेटा उठा रहा है और उस पर्टिकुलर रजिस्टर में जो भी स्पेसिफाई किया गया उसमें डाल रहा है। तो डेटा 8 बिट है तो 8 बिट रजिस्टर यूज हुआ है, डेटा अगर 16 बिट होता तो 16 बिट रजिस्टर हम यहाँ पे यूज कर लेते। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो इसे कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या हो रहा है, देखो मेमोरी लोकेशन से डील हो रही है। मेमोरी लोकेशन जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो इंस्ट्रक्शन में आ रहा है। इंस्ट्रक्शन में क्या आ रहा है, मेमोरी का एड्रेस आ रहा है, ना कि इमीडिएट जैसे डेटा आ रहा है, ना कि रजिस्टर जैसा दूसरा रजिस्टर है। यहाँ पे क्या है, मेमोरी लोकेशन है जो इंस्ट्रक्शन के साथ क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, एसोसिएट हो रही है। या हम बोल सकते हैं कि मेमोरी लोकेशन एज एन ऑपरेंड यहाँ पे यूज किया गया है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, मेमोरी लोकेशन एज एन ऑपरेंड यूज किए जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। अब मेमोरी टू मेमोरी नहीं होगा Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन, या मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन कोई भी नहीं होगा। मतलब डेस्टिनेशन की जगह मेमोरी होगा, सोर्स की जगह मेमोरी होगा, ऐसे नहीं होगा। ओके, या तो सोर्स की जगह मेमोरी लोकेशन हो सकती है या तो डेस्टिनेशन की जगह मेमोरी लोकेशन हो सकती है। दोनों तरफ मेमोरी लोकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जब आप देखते हो तो सोर्स या डेस्टिनेशन, मतलब इंस्ट्रक्शन के साथ जो भी ऑपरेंड आ रहे हैं, ऑपरेंड की जगह यहाँ पे हम मेमोरी लोकेशन एसोसिएट करेंगे पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के साथ। जैसे मूव इंस्ट्रक्शन में एज अ सोर्स ऑपरेंड हम क्या ले रहे हैं, मेमोरी लोकेशन। एज अ सोर्स ऑपरेंड अपन हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन ले रहे हैं। तो इस मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाया जाएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली क्या करेगी, मेमोरी लोकेशन के साथ डील करेगी। तो इस टाइप के एड्रेसिंग मोड को कहा जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
इस टाइप के एड्रेसिंग मोड को कहा जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब बात आती है सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल लिखा, मूव AX, 3000H। Yes, sir. अब इस एग्जाम्पल को हम डायग्रामेटिकली फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं AX लिखूंगा क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 16 बिट डेटा यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे AX, नीचे BX, उसके नीचे CX, उसके नीचे BX। ओके, और यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 H। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे लिखा हूं मैं 3 4 H, और ये मेमोरी लोकेशन हो जाएगी आपकी 3000H। अब मैं 3001H क्यों लिया यहाँ पे, क्यों लिया मैं? क्योंकि डेटा 16 बिट है। तो ये जो एक मेमोरी लोकेशन है वो 8 बिट की है, ये दोनों मिला के 16 बिट होगा, बराबर है। जब मूव AX, 3000H एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी लोकेशन 3000 और 3001 का डेटा, मतलब 16 बिट डेटा कंटेंट ऑफ AX में ट्रांसफर होगा, कंटेंट ऑफ AX में ट्रांसफर होगा। अब दूसरा एग्जांपल लिखा है, मूव AX, 3000H, उसके नीचे लिखो, उस एग्जांपल के नीचे लिखो, in above example 3000H is the memory location where the data is present, full stop. The data is of 16 bit. The data is of 16 bit. So it is stored on 3000H and 3001H memory locations, full stop. This is an effective address of data. This is an effective address of data, and this address is used by above instruction to move the content of memory locations into the content of AX register, अब सभी को डायग्राम दिखाई दे रही है? Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. ये डायग्राम निकालने की है, ये डायग्राम निकालो और जल्दी से करो, ये डायग्राम निकालना है जल्दी से। पिछला वाला जो था वो 8 बीट का एग्जाम्पल था, ये 16 बीट का एग्जाम्पल है। हम अभी भी डायरेक्ट मोड ही पढ़ रहे हैं। निकाल लिए? Yes, sir.
हाँ, अब लिखो हेडिंग। अब हेडिंग लिखना है डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। Displacement addressing. This is a next form or another form of direct addressing mode. This is a next form or another form of direct addressing mode. Full stop. This is same as direct addressing mode. This is same as direct addressing mode, except EXCEPT, except this is a 4-byte wide instruction. This is a 4-byte wide instruction. It means it can store, or we can say it can be used 4 byte to store this particular instruction. Okay, so this is a 4-byte wide instruction, and displacement is added. Displacement is added at the time of moving data to destination. And displacement is added at the time of moving data to destination. अब लिखना है उसका सिंटैक्स। लिखो सिंटैक्स। मूव, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो डेस्टिनेशन, ब्रैकेट खत्म होने के बाद देना है कॉमा, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट अगेन, उसमें लिखना है डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट क्लोज करके कोलन देना है, मतलब 2 डॉट्स होते हैं वो देने हैं, और थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है और उसमें लिखना है सोर्स। लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। जो मैंने सेलेक्ट किया वैसे लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. यस। अब लिखो फॉर एग्जाम्पल मूव AX कॉमा DS, कैपिटल DS कोलन, माने 2 ऐसे डॉट्स होंगे ऊपर नीचे, कोलन 2000H, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है 2000H। नीचे उसी के लिखना है मूव AX कॉमा इन ब्रैकेट 2000H move AX comma in bracket 2000H comma where DS is equal to 0100H। अब डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में लिखना है क्या करते हैं एग्जैक्टली। ओके, तो लिखो इन डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग
अरे टाइम हो गया है शायद, मैंने टाइम की तरफ देखा ही नहीं है। Yes. Okay, okay. We will go for that in the next lecture or next practical that we have on Monday. Okay. So till that, just we have to observe the things that we have studied in this lecture and the previous lecture also. Okay. So keep studying and practicing over the different instructions that we have and finding out the upcodes related to that. I'm giving you an assignment, that is you have to perform subtraction of 8-bit and subtraction of 8-bit register with the help of with the help of your register mode as well as your immediate addressing mode. जैसे आपने एडिशन का प्रोग्राम किया है वैसे ही सब्ट्रैक्शन का करना है, सिर्फ ऐड की जगह सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन आएगी, एसयूवी इंस्ट्रक्शन आएगी। वो इंस्ट्रक्शन आपके अपकोड शीट में अवेलेबल है, वो अपकोड शीट में इंस्ट्रक्शन देखो, उसके साथ जो भी अपकोड निकलेगा उस इंस्ट्रक्शन का वो अपकोड फाइंड आउट करो और 2 प्रोग्राम्स आपको लिखने हैं या 2 प्रोग्राम्स आपको खुद से करने हैं जो कि addition of 8-bit numbers, subtraction of 8-bit numbers using register addressing mode and subtraction of 8-bit numbers using immediate addressing mode. ओके ये 2 प्रोग्राम्स आपको खुद को करने हैं। बाद में मैं मंडे को आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का प्रोग्राम दिखाऊंगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की तरफ जाएंगे। ओके, सो नाउ वी कैन लीव द क्लास एंड जॉइन टू द नेक्स्ट वन।